Hello, students. How are you? I hope that you will be fine and happy. We will read this chapter first, sentences. So then we discuss. Let's start now. When we speak or write, we use word. जब हम बोलने लिखना शुरू करते हैं, we use word. तो हम किसका शब्दों का प्रयोग करते हैं. These words are the typically arranged in a particular order to make sentence. जब इन सारी शब्दों को मिला दिया जाता है, इन वर्डों को मिला देते हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस बन जाता है. नंबर जैसे look at the following groups of the word. Number first, are dancing, enjoying, boys are these गर्ल्स. जैसे यहाँ पर टिपिकल वर्ड्स को हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने टिपिकल वर्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया है, तो इट्स नॉट अ सेंटेंस. जब हम इसको अरेंज करेंगे और उस सेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, मतलब उसको सही क्रम में लगाएंगे, तो इट्स मेक अ सेंटेंस. एंड देन these group of the words don't make any sense and fail to convey any meaning. जब हम किसी वर्ड को जोड़ तो देते हैं लेकिन उसका सही अर्थ नहीं निकलता, उसका कोई अर्थ का ही पता नहीं होता, तो वो हमारा सेंटेंस नहीं बनता है. नाउ लेट्स सी हाउ दे अपीयर व्हेन द अरेंज करेक्टली. यदि हम उनको इन वर्ड्स को अपीयरिंग करें करेक्टली फॉर्म्स में, तो दे मेक अ गुड सेंटेंस एंड make a good sentence. These received group of the words now make complete sense and are called sentences. First of all, we read it. Are dancing, enjoying, boys are these girls. है ना, ये क्या है, इनकरेक्ट फॉर्म्स. इसको हम करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं. तो these boys and girls are enjoying dancing. यहाँ पर क्या करना है, परफेक्ट सेंस निकल रहा है, तो इट्स मेक अ sentence. Number second है in having the playground fun they are. तो इसको हम करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो they are having fun in the playground. नेक्स्ट है to rest sat players many that on chairs. करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे many players sat on the chair to rest. नेक्स्ट, players are playing ball with what? So the players were playing with a ball. Next है are some them of the standing there. तो यहाँ पर next है some of them are the standing there. Next है watching two were actors game the. यहाँ पर correct form लिखेंगे two actors were watching the game. So all these groups of the words make complete sense. Such groups of the words are called sentences. Next है what is sentences? A sentences is a group or combination of the words arranged in the correct order to express a complete thought or ideas. Remember? Remember, there are the three keys points to keep in the mind about a sentence. सेंटेंस बनाते समय हमें निम्न 3 बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए. नंबर फर्स्ट है द वर्ड इन दिस सेंटेंस मस्ट बी अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर. एंड सेकंड, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज begins with a capital letters. And number third, the sentence ends with the epithet, punctuations, marks, a full stop, a question mark, and a exclamation mark. Red type of sentences. What is the types of sentences? A sentence is a stative factor, make a statement, it can ask a questions, or it can give a command or make a request. It may express strong feelings or emotions. Exclamations on it can also express a wish or a prayer. It's a next step. So there are 5 main types of sentences. Number first है adjective, number second interrogative, number third imperative, number 4 exclamative, and number 5 optatives. Number first है assertive sentences. What is an assertive sentence? And sentence that merely state or declares something is called an assertive sentence. Number first,
affirmative sentence, and number 2, negative sentence. Affirmative sentence, what is an affirmative sentence? So affirmative, a positive statement. A positive statement is called an affirmative sentence. For example, some hunters hunt by animal. And number 2, they waited for you until 8 a.m. जहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है इट्स कॉल्ड अ अफर्मेटिव सेंटेंस. नंबर सेकंड है नेगेटिव sentences. A assertive sentence that denies something is called a negative. Is called a negative sentences. For example, all that glitter is not gold. जो भी चमकता है वो सभी गोल्ड नहीं है. Our team could not play well. हमारी टीम अच्छा नहीं खेल सकती. तो यहाँ पर नहीं नॉट का यूज हो रहा है. इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस. Remember, put a full stop at the end of the adjective sentences. Next, formation of the negatives. Negative words like no, none, never, not, nowhere are used to change assertive sentences to the negative. For example, number first है, all of boys were hired. तो negative कैसे करेंगे? None. None of the boys were hired. Next है, this is the good news. Negative बनाएंगे, this is not a good news. Next है, they are the always happy. Next करेंगे, they are never happy. Always का negative है never. Everyone felt the earthquake. So no one felt the earthquake. It's the negative sentences. Number second है interrogative sentence. What is an interrogative sentence? A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. For example, why are you making noise? यहाँ पर क्या है? Questions create हो रहा है. So it's an interrogative sentences. Number second, what kind of the stories do you like? यहाँ पर भी क्वेश्चन है, तुम्हें किस तरह की स्टोरी पसंद है? यहाँ पर भी हम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी को हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. Remember, put the question mark at the end of the interrogative sentence. Interrogative sentences के लास्ट में क्वेश्चन मार्क सिंबल का यूज किया जाता है. फिर फॉर्मेशंस ऑफ द इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव के बारे में कुछ और बताते हैं. फर्स्ट है रवि इज द गुड बॉय. तो यहाँ पर क्या है? ये एडजेक्टिव. फिर है इज रवि ए गुड बॉय. क्या रवि अच्छा लड़का है? ये हो गया इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है to form the interrogative or questions, we change the position of the sentence, subject and the verb. So that the subject Ravi comes after the verb. Is number first है in assertive sentences that have helping verb like is, am, are, has, have, had, shall, should, was, were, etc. The question starts with the helping verb. For example, number first है they have 500 rupees. तो यहाँ पर जब हम इसको बनाएंगे इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? बाहर आ जाएगी. जब हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट के बाद, जब हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है उसी को हम एडजेक्टिव सेंटेंस कहते हैं. और जब हम उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया जाता है. हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह रख दिया जाता है, उसी को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, तो दे हैव 500 रुपीज. दे हैव, तो हैव क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को हमने बाहर निकाल दिया, तो हमने निकाल दी यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह, तो हैव दे 500 रुपीज. ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन से साहिल शुड जॉइन द कोचिंग क्लास. तो should साहिल join the coaching class. और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क. तो ये क्या हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट में when forming questions for adjective sentence then do not have helping words.
the helping verb do is used at the beginning of the questions. For example, Raju writes well. तो यहाँ पर जो राइट में ऐसा लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है एस या ईएस लगाते हैं ना प्रेजेंट सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस में, तो यही हमारी जब हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट हो जाती है डू या डज में, डू या डज में। तो जब यहाँ पर लग रहा है एस तो वहां पर बाहर निकलकर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी डल। तो डल राजू राइट वेल, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क किसी को हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। In such sentences, the helping verb changes according to person, number, or tense, while the main verb remains in its base form. For example, Mr. Sharma went to the market. तो Mr. Sharma went यहाँ पर verb की क्या है सेकंड फॉर्म का यूज किया है। तो जब हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो जब उसकी हेल्पिंग फॉर्म नेगेटिव में इंटरोगेटिव में बाहर निकाल के तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं डिड में। किसमें करते हैं डिड ले। तो यहाँ पर हमने डिड बाहर निकाल दिया तो डिड मिस्टर शर्मा, वो की सेकंड फॉर्म थी वे, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाएगा। तो डिड मिस्टर शर्मा गो टू द मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है दे वॉच अ मूवी एवरी सैटरडे। तो यहाँ पर भी क्या है वो मूवी देखते हैं प्रत्येक शनिवार को। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने के कारण क्या होगा यहाँ पर डू बाहर आ गया। तो डू दे वॉच ए मूवी एवरी सैटरडे, और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। Sentences that express a command, request, advise, or wish is called an imperative sentences. For example, please यहाँ पर क्या कर रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज lend me your umbrella। तो यहाँ पर क्या कर रहा है रिक्वेस्ट, तो इट्स अ imperative sentence। नंबर सेकंड है सर्व योर कंट्री, अपने देश की सेवा करो। तो यहाँ पर हमें क्या बताई जा रही है एडवाइस कह सकते हैं, है ना, विश कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब इन चीजों को इंडिकेट किया जा रहा है उसी को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। रिमेंबर पुट ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा होता है कहीं कहीं या फिर सब्जेक्ट होता है, तो उसमें कुछ भी कमांड एडवाइस या विश को इंडिकेट किया जाता है, उसी को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और लास्ट में इसमें फुल स्टॉप लगाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, sorrow or wonder. For example, how beautiful the rainbow। यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है एक्सक्लेमेशन साइंस को और किसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को। स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यहाँ पर कितना वंडरफुल, ये रेनबो कितना सुंदर है, तो यहाँ पर क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है हुर्रा, खुशी क्या कर रहा है हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच को जीत चुके हैं, तो यहाँ पर क्या है exclamatory sentence. Remember putting mark of the exclamations at the end open the exclamatory sentences. Next is optative sentences, and optative sentences express a wish or a prayer. For example, may God help you, जहाँ पर क्या हो विश हो, विश और प्रेयर एक्सप्रेस होती हो, उसी को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेकंड है मे गॉड लीड यू सक्सेस, भगवान करे तुम्हें हमेशा आगे सक्सेस पहुंचाते रहे। तो यहाँ पर क्या है विश है प्रेयर है, तो उसी को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और साथ में क्या होता है पुट ए मार्क ऑफ द एक्सक्लेमेशंस एट द एंड ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंस। Chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.